ہے, بات کی جاتی ہے, اویئرنیس پھیلائی جاتی ہے. اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر عائشہ عمران موجود ہیں جو کہ ہیماٹولوجی کی اسپیشلسٹ ہیں, اور ملیریا کے حوالے سے ہی بات کریں گے کہ یہ بیماری کس طرح پھیلتی ہے, سمٹمز کیا ہیں اور کیا کیا پریکاشنز ہیں جو لینا بہت زیادہ ضروری ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ملیریا کا جو عالمی دن منایا جا رہا ہے, اس دن کی اہمیت کیا ہے؟ اس دن کو خاص طور پہ اس لیے منایا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ سے اویئرنیس جنریٹ کی جائے, نہ صرف ملیریا کا عالمی دن بلکہ جتنے بھی ایسے دن سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں وہ ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس جنریٹ کی جائے. اور ہمارے لیے ملیریا اس لیے اہم ہے اویئرنیس کیونکہ ہمارے ملک میں یہ بہت کامن بیماری ہے اور بہت لوگوں کو پتہ ہے, اور اس سے زیادہ اس میں نالج ہونا ضروری ہے. بالکل صحیح. بچوں میں خاص طور پر یہ بیماری بہت جلدی پھیلتی ہے اور بہت تیزی سے پھیلتی ہے. یہ بیماری ہوتی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جاننا ایکچولی ملیریا جو ہے ایک مچھر کے کاٹنے سے ٹرانسمٹ ہوتی ہے, جس کو کہ پلازموڈیم کہا جاتا ہے. اس کے کاٹنے سے جو جراثیم ہیں وہ مچھر سے منتقل ہو کے انسان میں جاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ اپنا اثرات جو ہمیں نظر آتے ہیں ایز ان دا فارم آف سمٹمز جو پیشنٹس کے اندر وہ کیا اس کے کلیئر سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا سمٹم کیا ہے؟ سمٹم عام طور پہ جب مریض میں نظر آتے ہیں, جو پیشنٹ زیادہ تر ہمارے پاس آتے ہیں, وہ بخار کے ساتھ, اور شدید بخار ہوتا ہے, تیز بخار ہوتا ہے, اور سردی کے ساتھ ہوتا ہے, شیورنگ کے ساتھ ہوتا ہے, اور بہت ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے کئی دفعہ ملیریا بہت سیریس کنڈیشنز میں بھی پریزنٹ کر سکتا ہے, کئی دفعہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے. تو لیکن زیادہ جو کامن سمٹم ہے جو سب سے زیادہ ہے وہ بخار ہے. اچھا, تو یہ مکسچر بھی تو ہو جاتا ہے کیونکہ بہت سی بیماریاں ہیں جن کے سمٹمز یہی سے شروع ہوتے ہیں, کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ملیریا کو تشخیص کرنا کہ وہ ملیریا ہے, اس کے لیے آگے فردر ورک اپ, کیونکہ بہت ساری اور بیماریاں لائک اسی طرح سے پریزنٹ کرنے والی بیماری جیسے ڈینگی ہے جو کہ وہ بھی بہت کامن ہے, اس کے سمٹمز یا اس کی علامات بھی ویسے ہی ہوتی ہیں جیسے کہ ملیریا کی ہوتی ہیں. تو اس لیے اس میں فرق کرنا کہ ملیریا ہے یا ڈینگی ہے وہ آگے پھر ضروری ہے. اس کے علاوہ کئی دفعہ انفیکشنز بھی ہوتی ہیں جو کہ اسی طرح کے علامات کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں. تو اس لیے ملیریا کا پہچاننا کہ یہ ملیریا ہی ہے, اور اس کا بخار کا بھی کچھ پیٹرن ہوتا ہے کئی دفعہ کہ وہ ایک دن چڑھتا ہے سردی کے ساتھ, پھر اتر جاتا ہے, اور پھر دوبارہ چڑھتا ہے. پیٹرن کئی دفعہ نظر آتا ہے جس سے ڈاکٹر کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے ملیریا. لیے پراپر ٹیسٹ وغیرہ بھی موجود ہیں جس سے آپ یو کین میک شیور جیسے ہم, کیونکہ میرا تعلق کیونکہ لیب سے ہے تو ہمارے پاس بلکہ دنیا بھر میں جو گولڈ سٹینڈرڈ کہا جاتا ہے وہ ٹیسٹ کے خون لے کر اور اس کو مائکروسکوپ کے ذریعے آپ ملیریا کے جراثیم کو یا پیراسائٹ کو ہم نظر آتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. اور دوسرے جو کچھ ریپڈ ٹیسٹ ہیں جن میں آپ آئی سی ٹی ملیریا ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے, جس میں کئی دفعہ کیونکہ جو ٹیسٹ جیسے اگر کوئی ایسا بندہ ہے یا ٹیکنیکل اس پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے مائکروسکوپی کے اس کی وہ پہچان کر لے اور اس کو مل جائے, کئی دفعہ وہ مس ہو سکتا ہے. سو لو لیول ہو جب ملیریا کے جراثیم کا تو اس میں آئی سی ٹی بھی کر سکتے ہیں ہم, اور اس میں کچھ لمیٹیشنز اس ٹیسٹ کی بھی ہیں. ظاہر ہے کہ آپ کو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سیٹ اپ میں ہیں اور وہاں پہ کیا ریکوائرمنٹ ہے. صحیح, وہ پھر اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. اچھا, ملیریا جیسے آپ نے کہا کہ مکس بھی ہو سکتا ہے ڈینگی کے ساتھ, تو ظاہر ہے ڈینگی کے حوالے سے تو ابھی کیونکہ کچھ سالوں سے یہ بیماری جو ہے وہ ہمارے یہاں پر اس ایریا میں نظر آئی ہے. ملیریا کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے. سو پریونشنز کیا ہیں اس کی؟ پریونشنز obviously جو ہے کافی تدابیر کی گئی ہیں, گورنمنٹ حکومت ہمیشہ سے آئی ہے, بٹ سب سے جو اچھی پریونشن ہے وہ obviously جن جگہوں پہ مچھر کی گروتھ ہے ان جگہوں کو یعنی صفائی اور کچرا کوڑا جن پہ مچھر کرتا ہے. اس میں بھی مچھر کی کوئی خاص قسم ہوتی ہے یا پلازموڈیم ہے خاص جو فیمیل ہے وہ اس کے کاٹنے سے جو ہے وہ یہ بیماری پھیلتی ہے. اچھا, اس کی ٹائپس بھی ہیں, ڈفرینٹ ٹائپس بھی ہیں؟ جی, ملیریا کی 4 نون کامن جو ٹائپس ہیں ان میں
में से जो कॉमन पाकिस्तान में देखने में आती हैं वो फैल्सीपेरम और जो है वो ओवेल वाइवेक्स है। और इसके अलावा ओवेल भी जैसे सिंध में है ज़रा ज़्यादा कॉमन, लेकिन जो ज़्यादातर जो सबसे कॉमन है वो वाइवेक्स है। इसके अलावा एक और किस्म है जो प्लाज्मोडियम मलेरिया है। बिल्कुल सही। सो ये जो है वो मैटर भी करता है कि इसमें डेंजरस किस्म कौन सी है और इसमें कॉमन जो हाँ जी, किस्म कुछ ऐसा है क्योंकि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ज़्यादा ख़तरनाक हद तक ले जाता है और सेरेब्रल मलेरिया और जिसके अंदर जानलेवा सिचुएशन भी आ जाती है कई दफ़ा, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम काफ़ी रिस्क कैरी करता है। इसका इलाज किस तरह से किया जाता है? ज़ाहिर है हम एंटी मलेरियल्स जो दवाइयाँ हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं इसकी ट्रीटमेंट के अंदर, और पेशेंट्स को आम तौर पे जो डॉक्टर्स हैं जैसे ही वो इस किस्म के अलामात के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहे होते हैं वो साथ ही शुरू कर देते हैं और इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस कर देते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, सेल्फ मेडिकेशन जो लोग करना शुरू कर देते हैं कि बुखार होता है तो ख़ुद से मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, वो इसमें डेंजरस है या क्या आप क्या सजेस्ट करेंगे? हाँ जी, कुछ सिचुएशंस में ख़तरनाक हो सकता है जब अंडरलाइन कोई और डिसऑर्डर भी साथ चल रहा हो, उस सिचुएशन में भी ख़तरनाक हो सकती है, इसलिए सेल्फ मेडिकेशन सजेस्टेड तो कभी भी नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब यहीं से हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन नाज़रीन उससे पहले एक ब्रेक लेनी है मुझे, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें, हर वाकया हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मिनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं, ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमन आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन, उनके जहनों में वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर आयशा इमरान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हेमेटोलॉजी की स्पेशलिस्ट हैं, चुतवाई लैब के साथ एफिलिएटेड है, और मलेरिया के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि मलेरिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सो डॉक्टर साहिबा, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इसका इलाज
कैसे मुमकिन होता है और कितना टाइम लगता है इससे रिकवर होने में? अगर उसको बर वक्त ट्रीटमेंट दे दिया जाए, जैसे कि डॉक्टर्स फ़ौरन दे देते हैं, तो बहुत जल्दी सिम्टम्स सेम डे या नेक्स्ट डे में रिजॉल्व हो जाते हैं। अच्छा और अगर डिले हो जाए और कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं, ऑब्वियसली कई दफ़ा वो कैरियर स्टेट में भी चले जाते हैं, फिर उसमें फिर और फर्दर ट्रीटमेंट हो जाता है, फिर मुश्किल भी हो जाता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, जब भी हम प्रिवेंशन की बात करते हैं उसमें एक चीज़ भी सामने आती है, वो है वैक्सीनेशन। क्या इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है या नहीं, इस पर बात करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन, यहाँ पर आपको एक अहम खबर देंगे और आपको बताएंगे टाउन हॉल में कायम मेयर लाहौर नज़ीर अहमद सवाती की ज़ेर सदारत इजलास जारी है। इजलास में डिप्टी मेयर चौधरी वसीम कादिर, बिलाल चौधरी भी मौजूद हैं। राउदल शाद हमारे साथ हैं। जी राउदल शाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मेयर लाहौर की बैरून-मुल्क रवानगी के बाद ये पहला बाकायदा इजलास तलब किया गया है कायम मकाम मेयर नज़ीर खान स्वाति की सदारत में, जो कि जारी है, जिसमें तमाम डिप्टी मेयर्स मौजूद हैं, तमाम टाउन्स के TMOs को मदऊ किया गया है और तरक्याती कामों के हवाले से और सैनिटेशन टैक्स समेत जो इन्फोर्समेंट टैक्स है उसकी हवाले से जो है वो तजावीज़ पर गौर किया गया। ताहम डिप्टी मेयर्स की जानिब से जाली टैक्सेशन ऑफिसर्स के मुतालिक शिकायत के अंबार जो है वो यहाँ पर सामने आए हैं, जिस पर कायम मुकाम मेयर लाहौर नज़ीर खान स्वाति ने फौरी तौर पर तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है, जो कि वसीम कादर, मियां तारिक, हाजी अल्लाह रखा और डिप्टी मेयर जो है वो राना एजाज अहमद हफीज पर मुश्तमिल होगी, जो इस बात की इंक्वायरी करेगी कि जो टाउन्स में मौजूद अमला है वो किस बात का और क्यों सैनिटेशन टैक्स और उसके साथ साथ इन्फोर्समेंट टैक्स अपनी मर्जी से वसूल कर रहा है। जी शुक्रिया राउदल शाद आपका। जी गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। जी डॉक्टर साहिबा, हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे। वैक्सीनेशन अवेलेबल एज सच कोई नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन बहुत अच्छे तरीके से इसके की जा सकती है। जैसे मैंने बताया कि आप सफाई सुथराई कर सकते हैं, वहाँ पे मच्छरों के अच्छे स्प्रेज हैं जिनसे आप वहाँ पे मच्छर, स्पेशली घरों में या उन एरियाज़ में जहाँ पे मच्छर है वहाँ पर स्प्रेज हैं। गवर्नमेंट जैसे स्प्रेज कर देती है, जैसे डेंगू की प्रिवेंशन के अंदर वो मच्छर है, क्योंकि तो वो मच्छर मलेरिया उससे ख़त्म हो जाता है। मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। घरों में नेट्स होते हैं, बच्चे जैसे स्पेशली उनके लिए आप नेट्स यूज़ कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन है जो एक्चुअली उसके लिए। अच्छा, ज़्यादातर तो ये बीमारी फिर मानसून के करीब होती होगी, या अगर बाहर का मौसम है खासतौर पर जहाँ जिसमें मच्छर होते हैं उसमें ये बीमारी बिल्कुल ऑब्वियस चीज़ आपने सही कहा है, क्योंकि ये सीज़न अब है थोड़ा सा जिसमें कि चेंज ऑफ वेदर में कई दफ़ा वो उस टाइम पे ग्रो करते हैं, या वो बरसात के बाद या उन सीज़न में फ्रॉम अगस्त टिल जुलाई, अगस्त से लेकर सितंबर अक्टूबर तक चलता रहता है। बच्चों में बहुत तेजी से फैलती है ये बीमारी। बच्चों में क्योंकि बच्चे बाहर खेलते हैं, बाहर जाते हैं लॉन्स में, पार्क्स में, इन जगहों पे मच्छर बहुत होते हैं, और इसलिए उन बच्चों में अच्छा यही है कि आप उनको बहुत अच्छी तरह जब इन सीजन्स में स्पेशली तो आप मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करें और यही प्रिवेंशन। अच्छा, एक से दूसरे बच्चे में ये बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है? ऐसे नहीं होता, लेकिन ये जहाँ रह रहे हैं और अगर मच्छर हैं, अगर उसको काट के वो बच्चा दूसरा मच्छर उस दूसरे बच्चे को काटे तो फिर तो ट्रांसमिट ऑब्वियसली हो रही होती है। वही मच्छर है उसको भी, और फिर उसको भी कम्युनिटीज़ में इसलिए ज़्यादा फैल जाती है हमारे। बिल्कुल सही। अच्छा, इस बीमारी में डाइट का क्या अमल दखल होता है? खाना क्या खाना चाहिए बच्चे को या जिसको भी ये डिजीज़ है? ऑब्वियसली डाइट कोई ऐसा स्पेसिफिक उसमें कोई प्रिस्क्राइब्ड कोई नहीं है, क्योंकि ये सिम्टम्स या वो चीज़ें जो भी हैं वो मच्छर के काटने के साथ हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि खाने पीने से, क्योंकि ट्रांसमिट भी नहीं हो रही, ना कोई उससे बचाव हो सकता है खाने पीने का। इसकी अपनी ट्रीटमेंट है, तो ऐसा कोई डाइट कोई नहीं है। कोई डाइट नहीं है, बिल्कुल सही। अच्छा, आप स्पेशलिटी आपने की हुई है हेमाटोलॉजी में, जो ब्लड डिजीज़ के बारे में जो है वो डायग्नोज किया जाता है और उसको देखा जाता है। इसके अलावा कौन सी ब्लड की बीमारियाँ हैं जो बहुत कॉमन देखने में आती हैं? बेशुमार है। सबसे हमारे कम्युनिटी में जो कॉमन है वो खून की कमी है, अनीमिया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। एंड आई थिंक हर दूसरा बंदा अनीमिक है। और दूसरा मलेरिया के हवाले से मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये मलेरिया क्योंकि हम देखते हैं कि खून के ज़रिए ट्रांसमिट होता है और दूसरे को जा सकता है, तो जब हम डोनेट करते हैं तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि मलेरिया की तशख़ीस की जाए ताकि वो किसी में ट्रांसमिट ना हो। खून से एक पेशेंट को एक डोनर से दूसरे जब रिसिपिएंट में
ब्लड जाएगा तो ये ट्रांसमिट हो सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे अभी हम देखिए खून की, अगर किसी को खून लग रहा है तो उससे भी हो सकता है। एनेमिक लोगों की अगर बात करें तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि जैसे ठीक है मलेरिया की हमने बात की, लेकिन जैसे आपने कहा कि हमारी पूरी सोसाइटी में ये दूसरी या ये एक बहुत बड़ी डिजीज़ बनकर सामने आती जा रही है कि लोगों का HP लेवल बहुत कम हो जाता है, पीला फटक रंग होता है और खून की कमी होती है। इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्या पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसका डायग्नोसिस किया जाए, इसकी तशखीस की जाए कि ये क्यों है। और क्योंकि सबसे कॉमन जो हमारी पॉपुलेशन में देखी जाता है वो न्यूट्रिशनल या खुराक की वजह से, कमी की वजह से खून की कमी होती है। कुछ ट्रेंड डाइट की तरफ चला गया होता है, लोग खाने पीने को अवॉइड कर रहे होते हैं, उससे भी ये चीज़ें ज़्यादा सामने आ रही हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुझे मुसलसल एक उसी बताने की कोशिश की जा रही है जैसे मैं समझने की कोशिश भी कर रही थी और मैं आपकी बात भी सुन रही थी। डॉक्टर आयशा, यहीं से हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन आपको BC होटल लिए चलेंगे जहां पर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज में आलमी कवानीन को राइज करने के हवाले से तकरीब जारी है, बराह रास्त लिए चलेंगे। WWF and International Labour Organization's project about water conservation. Pakistan Ready-Made Garment Association having 3 offices. Head office is in Karachi. Rural representation is in Lahore and in Sialkot. Total almost there are 800 manufacturers all across Pakistan. The main target of all the exporters is towards Europe and USA and then Far East countries to facilitate or to enhance export from Pakistan side. Rignia has been engaged in different activities like working with International Labour Organization. From last 11 years we are with this organization working on social standards, labor laws, and because of that support we have been able to achieve GSP Plus status, because this has not been granted just only the opportunity. They have actually seen a lot of indicators prevailing in Pakistan. So support of International Labour Organization for uplifting of the standards has been a key success factor. Then we have worked with the United Nations Development Program, that is gender promotion. That was a 7-year project, and it addressed the production, efficiency, environment sectors, along with the technical training of the human resource. होटल में स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज में आलमी कवानीन को राइज करने के हवाले से तकरीबा बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे थे। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, लाइव जाने से पहले मैं HP लेवल जिन लोगों का बहुत कम हो जाता है और जो लोग एनामिक होते हैं उनकी बात कर रही थी, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? उनके लिए जैसे मैंने कहा, एक तो पहले बहुत ज़रूरी है कि उसको डिटेक्ट किया जाए, डायग्नोज किया जाए कि उसकी वजह क्या है। कई दफ़ा डाइट होती है, कई दफ़ा अननोन तरीके से ब्लड लूज़ हो रहा होता है, पता भी नहीं चलता मरीज़ों को और वो अनीमिक हो जाते हैं। वो अंडरलाइंग बहुत ख़तरनाक बीमारियां भी आपके सामने आ जाती हैं जिनकी वजह से ये अनीमिया होता है। तो इसलिए उसका डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है पहले कि क्या वजह है। तो अगर तो ये कोई वजह खुराक की है तो उसके लिए साथ सप्लीमेंट्स के अलावा डाइट है। खजूर बहुत अच्छी चीज़ है खून को बढ़ाने के लिए। कुछ फ्रूट्स हैं लाइक केला है, सेब है, जैसे आप लोगों को पता है। मीट और मीट प्रोडक्ट्स, रेड मीट है, कलेजी, इन चीज़ों में बहुत अच्छा खून बनाने बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यानी कि इस तरह की अपनी डाइट को अगर आप बेहतर रखें तो बहुत हद तक जो है इस पर ओवरकम किया जा सकता है। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी एंड मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने मलेरिया के आलमी दिन पर मलेरिया के हवाले से लोगों तक दी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और